Today the topic we have kept is blocked credits under GST and its effective management. The topic is a way ahead or a step ahead than what is mentioned in the law. That's why we have explicitly mentioned it in the topic that its effective management is also discussed herein. So, as far as goods and services tax is concerned, input tax credit is one of the most important aspects of this law, and this has been understood by all of you or the industries in the period so far spent with the regime. Now, today, as I told, we'll be discussing the blocked credits under the law. Before jumping on to that directly, I'll just brief out the concept of ITC under GST so that I can supplement the discussion wherever I'm telling what is blocked and what is not blocked and how to interpret the law or the circumstances which we are discussing in the presentation ahead. Input tax credit क्या होता है? Input tax credit is taking credit of the tax which has been charged on any supply of goods or services जो आप यूज लेने वाले हैं in course of furtherance of your business. आप ले चुके हैं या you intend to use those supplies in course of furtherance of your business. अगर आपने कोई भी इनवर्ड सप्लाई लिया whether you have purchased goods or services और उस पर कोई टैक्स चार्ज हुआ और वो सप्लाई आप अपने बिजनेस में यूज लेने वाले हैं, ओनली द ओनली कंडीशन इज आप बिजनेस में यूज लेने वाले हैं, तो उस टैक्स का आप क्रेडिट ले सकते हैं, उसे सेट ऑफ करके अपनी आउटपुट लाइबिलिटी नेट आउटपुट लाइबिलिटी आप पे कर सकते हैं जीएसटी में. दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट नोन टू ऑल. There are 4 conditions for claiming ITC. That is also, I won't go into deep. They are also known to everybody. आपके पास एक valid invoice होना चाहिए, आपको वो goods या services receive हो जाने चाहिए, एक्चुअल टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को हो जाना चाहिए और 39 सेक्शन 39 के रिटर्न फाइल हो जानी चाहिए, विच इन कॉमन पैलेंस इज जीएसटीआर 3B एज ऑफ नाउ. तो ये कुछ कंडीशंस है, अगर ये कंप्लाई हो जाती है तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो. दिस इज जनरल rule or the general criteria for taking input tax credit. But going on to the next slide, there are some restrictions also in taking the credit. तो general rule तो बोलता है कि आप ITC ले सकते हो किसी भी inward supply पे जो आप यूज करने वाले हो अपने business में. Yes. Interrupt. Yes. Your voice was not audible in between. Is it audible right now? Yeah, it is audible. Okay, I'll adjust accordingly. Did I cover section 16 properly? That time I was audible, right? Okay. So yeah, you can cover from 16. Okay. So now the step ahead is, एक बार अगर ये डिसाइड हो जाता है कि सेक्शन 16 जो कि एक जनरल रूल है कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट इस केस में ले सकते हो या जनरली बिजनेस के यूज में आने वाली सप्लाईज पे ले सकते हो, देन द नेक्स्ट स्टेप इज कि वही जो लॉ का वो चैप्टर है इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी बोलता है कि ऐसा नहीं है कि हर इनवर्ड सप्लाई जिसपे टैक्स लग गया और आप बिजनेस में यूज लेने वाले हो आप उसका क्रेडिट ले लें. कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, वो रिस्ट्रिक्शंस एम्बेडेड है 2 पार्ट्स में, जहां जैसे मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ इन दिस प्रेजेंटेशन. वन इज अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड द सेकंड वन इज ब्लॉक्ड क्रेडिट्स. तो एक तो होता है कि आप क्रेडिट तो ले सकते हो पर आपको उस क्रेडिट को बांटना पड़ेगा 2 पार्ट्स में, और एक पार्ट ऑफ क्रेडिट आप ले सकते हो, द अदर वन यू आर लायबल टू रिवर्स इट. वो क्यों होती है? 2 रीजन से होती है. नॉन बिजनेस पर्पसेस और एग्जेम्प्ट सप्लाईज को अट्रीब्यूटेबल अगर कोई इनवर्ड सप्लाई का क्रेडिट होता है तो उसको आज मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज द टॉपिक वी हैव टुडे at our front is blocked credits, which is the second topic or the second restriction to the general rule of taking input tax credit, and that second restriction is blocked credits under GST law. So ये blocked credits का concept आता कहाँ से? जनरल रूल बताने के बाद लॉ ये बोलता है कि जनरली तो आप ITC ले सकते हो हर इनवर्ड सप्लाई का जो बिजनेस में काम आने वाली है, लेकिन वी आर प्रोवाइडिंग अ लिस्ट हियर. उस लिस्ट में जितनी भी एंट्रीज हैं उसके रिस्पेक्ट में आप कोई क्रेडिट नहीं ले सकते. लॉ डज नॉट एंटाइटल यू टू दैट क्रेडिट. यू आर नॉट अलाउड टू टेक दैट क्रेडिट. ओके, today's topic is the discussion of that list.
Going on to the first entry in that list, उस list को हम block credits बोलते हैं. Going forward, I'll be referring it to as block credits. Going forward to the next slide, the first entry in that list is motor vehicles, which is like a place for many confusions and of course litigation also, because it has been changed when Amendment Act came in 2019. We'll discuss what the law says as on date and what ITC is restricted as per that provision today for motor vehicles or in respect of motor vehicles. पहला हम बात कर रहे हैं जो लॉ बोलता है इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट एलिजिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटर व्हीकल्स. दिस इज द लैंग्वेज ऑफ द लॉ कि मोटर व्हीकल्स के रिस्पेक्ट में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. लेकिन कौन से मोटर व्हीकल के रिस्पेक्ट में नहीं मिलेगा? जिनका अप्रूव सीटिंग कैपेसिटी 13 पर्सन तक है. ये अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद आज की लॉ की पोजीशन है कि अगर गाड़ी जो जिसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं जिसपे टैक्स लगा हुआ है, वो गाड़ी की अगर सीटिंग कैपेसिटी 13 पर्सन तक है तो उसी का क्रेडिट रिस्ट्रिक्टेड है. तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो जाती है, 13% से ज्यादा वाली सीटिंग कैपेसिटी के किसी भी व्हीकल पे इनपुट टैक्स क्रेडिट का कोई क्वेश्चन ही नहीं है. कोई क्वेश्चन नहीं है कि क्रेडिट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है. Okay, so there is no restriction in respect of motor vehicles which has seating capacity more than 13%. तो वो बात खत्म हो जाती है. तो बस का क्रेडिट आप बस कैसे भी ले रहे हैं, whether you are leasing it, renting it, hiring it, purchasing it, क्योंकि वो बस है और उसकी कैपेसिटी 13% से ज्यादा है तो आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा. Questions end there. Okay, now रिस्ट्रिक्शन जिसके रिस्पेक्ट में उसकी बात करनी है कि उस रिस्ट्रिक्शन का भी कोई एक्सेप्शन है क्या कि उसके लिए भी क्रेडिट मिल सकता है या फिर बिल्कुल नहीं मिल सकता. तो जहां पे गाड़ी की सीटिंग कैपेसिटी 13% तक है इंक्लूडिंग द ड्राइवर, वहां लॉ बोलता है आईटीसी इज नॉट एलिजिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज मोटर व्हीकल्स. तो जब मोटर व्हीकल्स के रिस्पेक्ट में आईटीसी एलिजिबल नहीं है तो एक बात तो तय है कि मोटर व्हीकल्स खरीदने पे तो वो क्रेडिट नहीं मिलेगा. वहां तो क्लैरिटी है कि अगर आप कोई गाड़ी खरीदते हैं जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13% तक है तो आप उसका आईटीसी नहीं ले सकते, खरीदने पे तो एटलीस्ट नहीं ले सकते. फिर एक और एंट्री आगे आती है जो बोलती है कि अगर आप ऐसी ही कोई गाड़ी लीज पे लेते हैं, रेंट पे लेते हैं या हायर करते हैं तो भी आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते. तो अगेन क्वेश्चन एंड्स हियर. 13% से कम की सीटिंग कैपेसिटी की कोई भी गाड़ी लो, चाहे आप उसे खरीदें, चाहे आप उसे लीज करें, रेंट करें, हायर करें, उस गाड़ी की किसी लेने को किसी भी तरीके से आपको क्रेडिट नहीं मिल सकता है. दिस इज ऑन द मोड्स कि आपने गाड़ी कैसे ली. अभी सिर्फ गाड़ी की बात हो रही है, गाड़ी के खर्चों की बात नहीं हो रही है, टू बी वेरी क्लियर एंड प्रिसाइज. बस कुछ एक्सेप्शंस है लॉ में जो बहुत ही ऑब्वियस भी हैं कि उन केसेस में क्रेडिट मिलना ही चाहिए. अगर आप उस गाड़ी को फर्दर वही गाड़ी बेचने के काम में ले रहे हैं या किसी भी तरीके से उस गाड़ी को सप्लाई करने के काम में ले रहे हैं तो ऑब्वियसली उस गाड़ी का क्रेडिट आप ले लेंगे और वो मिलना भी चाहिए और वो मिलता है लॉ में. अगर आप उस गाड़ी को यूज कर रहे हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स तो आप गाड़ी का क्रेडिट ले सकते हैं, और या फिर आप उस गाड़ी को यूज कर रहे हैं ड्राइविंग की ट्रेनिंग देने में तो भी आप उस गाड़ी का क्रेडिट ले सकते हैं. ये सारी बातें 13% से कम वाली गाड़ियों के लिए हो रही है, क्योंकि ऊपर वालों के लिए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रेडिट एलिजिबल है ही. नाउ गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. जो मैंने अभी बोला प्रोविजन के बाद जो क्लैरिटी आई है वो ये है कि किस चीज के लिए क्रेडिट नहीं एलिजिबल है और किस चीज के लिए एलिजिबल है. जहां कैपेसिटी 13% तक है वहां क्रेडिट नहीं है, चाहे खरीदना, लीजिंग, हायरिंग या रेंटिंग हो. और जहां 13, अब क्रेडिट कहाँ अवेलेबल है, इससे दो बातें समझ में आई. जहां कैपेसिटी 13% से ज्यादा है क्योंकि वो व्हीकल पैसेंजर व्हीकल है, उस केस में क्रेडिट अवेलेबल है. और अगर वो व्हीकल ही ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाला व्हीकल है तो जब रिस्ट्रिक्शन सिर्फ पैसेंजर व्हीकल पे है तो गुड्स व्हीकल पे अगेन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तो गुड्स कैरियर्स पे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रेडिट ले सकते हो, आप उसको किसी भी तरीके से प्रोक्योर करो, उसका क्रेडिट आप ले सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड. नाउ द नेक्स्ट लेग ऑफ दिस व्हिच हैज बीन ब्रॉट फॉरवर्ड बाय अ सेपरेट एंट्री इज एक्सपेंसेस रिलेटेड टू मोटर व्हीकल्स. ये शब्द एक्सपेंसेस मैंने यूज किया है यहाँ पे फॉर योर क्लैरिटी कि आपके बुक्स में जो खर्चे डले हुए होते हैं मोटर व्हीकल से रिलेटेड, जो सबके यहाँ पे होते हैं ऑब्वियसली, उसके रिस्पेक्ट में आईटीसी का क्या स्टैंड है. तो वो क्या है, पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि जहां कैपेसिटी 13% से ज्यादा है, क्योंकि वो गाड़ियों का खरीदना या उनका प्रोक्योरमेंट पे ही आईटीसी ब्लॉक्ड नहीं है तो उनके खर्चों पे भी आईटीसी ब्लॉक्ड नहीं है. राइट, तो बस को
खरीदने पे भी आईटीसी है और बस के रिलेटेड हर खर्चे पे भी आईटीसी है, या फिर गुड्स व्हीकल के खरीदने पे भी आईटीसी है और गुड्स व्हीकल के रिलेटेड हर खर्चे पे भी आईटीसी है। तो वहां कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ओनली वहां है जहां उस व्हीकल को खरीदने पे तो आईटीसी नहीं मिलता, अब देखना है कि उसके खर्चों पे आईटीसी मिल सकता है या नहीं। तो आपने गाड़ी खरीदी जिसकी सीटिंग कैपेसिटी लेट्स से 7 पर्सन है, तो उसके रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं कि उसके खर्चों का क्रेडिट आप ले सकते हैं या नहीं। तो लॉ उसके रिस्पेक्ट में एक पर्टिकुलर एंट्री प्रोवाइड करता है जहां वो बोलता है सर्विसेज आईटीसी शैल नॉट बी एलिजिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विसिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस रिलेटेड टू द मोटर व्हीकल्स जिनकी कैपेसिटी 13% तक है। अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज लिखी हैं जो कि इंश्योरेंस है, गाड़ी की सर्विसिंग है, रिपेयर और मेंटेनेंस है, बट जो इंपॉर्टेंट वर्ड इस एंट्री में यूज हो रहा है वो हो रहा है सर्विसेज। लॉ खुद बोल रहा है इन सर्विसेज के रिस्पेक्ट में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, और जीएसटी लॉ में गुड्स और सर्विसेज दो सेपरेट टर्म्स हैं जो कि काफी क्लियरली लॉ में एम्बेडेड है कि क्या चीज गुड्स है क्या चीज सर्विसेज है। जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो गुड्स है, अदरवाइज जो चीजें हैं वो सर्विसेज है। और यहाँ पे जो क्रेडिट का रिस्ट्रिक्शन है वो सिर्फ सर्विसेज के लिए, वो गुड्स के लिए नहीं है जो लॉ में लिखा है और उससे जो इंटरप्रेट किया जा सकता है। गोइंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड, इससे हमारा इंटरप्रिटेशन ये है कि सर्विसेज के रिस्पेक्ट में ही क्रेडिट ब्लॉक्ड है। अगर आप छोटी पैसेंजर गाड़ियां जिनका 13% तक का कैपेसिटी है उनके रिस्पेक्ट में कोई खर्चा करते हैं और वो खर्चा गुड्स के फॉर्म में करते हैं, लाइक आप अपनी 7 सीटर कार के लिए कोई स्पेयर पार्ट परचेज कर रहे हैं, वो स्पेयर पार्ट का बिलिंग आपको गुड्स के एचएसएन में होके आया है, यू हैव जस्ट परचेज द गुड्स, आपने कोई सर्विसेज नहीं लिया है, तो वो गुड्स के एलिमेंट पे टैक्स का क्रेडिट आप ले सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट। दिस इज आवर इंटरप्रिटेशन। एज फार एज इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दिस रिगार्ड इज कंसर्न, हमको क्या करना होगा जिससे हम इजीली ये क्रेडिट ले सकें और हमसे ये मिस ना हो। हमको अपनी बुक्स में जितने भी खर्चे हैं मोटर व्हीकल से रिगार्डिंग, फर्स्टली हमको ये करना पड़ेगा कि कौन से खर्चे गुड्स व्हीकल के लिए और कौन से खर्चे पैसेंजर व्हीकल के लिए। दिस इज मैंडेटरी बिकॉज गुड्स व्हीकल के लिए क्रेडिट मिलता है और स्पेसिफिक पैसेंजर व्हीकल्स के लिए क्रेडिट नहीं मिलता है। तो ये टैगिंग हमको समहाउ अपने सिस्टम में रखनी चाहिए। ऑब्वियसली हमारे सिस्टम कंप्यूटराइज्ड हैं तो हमको वो चीजें मैनुअल ना करके अपने सिस्टम में पंचिंग के लेवल पे ही एम्बेड करवानी चाहिए। वो कैसे करवानी चाहिए, तब भी गाड़ी से रिलेटेड कोई भी खर्चा आपके बुक्स में डल रहा है तो नरेशन में या किसी भी स्पेसिफिक फील्ड ऑफ योर रिपोर्ट में आपको ये एक फील्ड रखना चाहिए कि वो व्हीकल कौन सा व्हीकल है, वो गुड्स वाला व्हीकल है या पैसेंजर वाला व्हीकल है, एक टैगिंग। दूसरी टैगिंग, वो पैसेंजर व्हीकल अगर है तो वो पैसेंजर व्हीकल क्या है, वो 13% से ज्यादा वाली कैपेसिटी का कोई पैसेंजर व्हीकल है या कम वाली। तो बेसिकली यू कैन मेंशन कार और बस विच कैन इंडिकेट कि उसकी सीटिंग कैपेसिटी कितनी है। अगर वो हमें किताबों से ही मिल जाएगा तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई कि कौन सी गाड़ी का क्रेडिट लेना है और कौन सी गाड़ी का क्रेडिट नहीं लेना है। अब एक चीज जो अदरवाइज भी हमको लॉ की और कंप्लायंसेस के लिए करनी पड़ती है वो भी यहाँ फिर से इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमें हर खर्चे के लिए ये भी आइडेंटिफिएबल होना चाहिए कि वो खर्चा जो बुक्स में डला है वो खर्चा गुड्स का खर्चा है या सर्विसेज का खर्चा है। ये स्पेसिफिकली मैं बात कर रही हूँ पैसेंजर व्हीकल के केस में, ऑल्दो ये और बहुत कंप्लायंसेस के लिए काम आता है, लेकिन पैसेंजर व्हीकल के लिए डालना इसलिए जरूरी है क्योंकि कहीं पे भी अगर गुड्स का खर्चा है और छोटा पैसेंजर व्हीकल है तो वहां आप क्रेडिट ले सकते हैं। दैट इज देयर इज अ स्कोप ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ओवर देयर कि अगर आप बुक्स में ये डिटेल रखते हैं कि कौन सा खर्चा है जो स्पेयर पार्ट्स का है या गुड्स का है, उसका क्रेडिट अननेसेसरीली आपको मिस नहीं करना चाहिए। बट द मैनेजमेंट रिक्वायर्स प्रॉपर इंफॉर्मेशन इन द रिपोर्ट्स इटसेल्फ, ताकि आपको हर इनवॉइस में निकाल के देखना नहीं पड़े, which is not possible when the scale is large. So that is what is required in effective management. One more important thing here is, आपको पता है कि आप स्पेयर पार्ट खरीद के आए हो या मे बी आप सर्विसिंग करा के आए हो और आपको पता है कि आपने वहां कुछ तो भी स्पेयर पार्ट्स खरीदे एंड सम सर्विसेज यू हैव प्रोक्योर्ड एंड दे आर सेपरेटली बिल्ड, बट वो आपको पता है पर आपके डॉक्यूमेंट में सामने वाले ने एक बिल में दोनों को कॉम्पोजिट सप्लाई की तरह बिल कर दिया है और सर्विस का लेट्स से एचएसएन कोड यूज कर दिया और जीएसटी रेट लगा दिया है। तो फिर आप ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ये व्यू नहीं ले सकते कि हमने गुड्स प्रोक्योर किए हैं इसलिए हमने क्रेडिट ले लिया है। तो आपको
अपने स्टैंड को जस्टिफाई करने के लिए हमेशा सप्लायर के टैक्स इनवॉइस पे चेक रखना पड़ेगा क्योंकि आई एम सेइंग दैट आई हैव प्रोक्योर्ड गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स, सो यू हैव टू इंश्योर कि आपके सप्लायर ने भी आपको गुड्स की ही बिलिंग की है। तो इसका इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या है? हर इनवॉइस में तो चेक कर नहीं सकते कि एचएसएन क्या लिख के दिया है, तो पंचिंग लेवल पे ही यू शुड इंश्योर कि सप्लायर ने जो एचएसएन लिखा है वही सिस्टम में पंच हो, ताकि आपको रिपोर्ट में साफ साफ दिखे कि एचएसएन क्या लगा था सर्विसेज पे, वो गुड्स का था या सर्विसेज का था। दिस विल प्रोवाइड यू क्लैरिटी एंड स्कोप फॉर नॉट मिसिंग द क्रेडिट विच इज valid under law. I hope I'm clear on this point. If you have any issues, you can mention the chat box. I'll take it at the end. Moving on to the next point. Motor vehicles के regarding इतना discussion था. Now it is ITC on food and beverages. Again, a very big issue. Food और beverages पे input tax credit नहीं मिलता है. General rule, very easy to understand if we only talk about the basic thing कि चाहे आप फूड गुड्स के फॉर्म में लें, चाहे सर्विसेज के फॉर्म में लें, चाहे आप आउटडोर केटरिंग की सर्विस लें, आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलता है एज पर लॉ. इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट? नाउ इसमें कुछ एक्सेप्शंस है. वो एक्सेप्शंस क्या है? अगर आप फूड और बेवरेजेस या आउटडोर केटरिंग की सर्विस ले रहे हैं, क्योंकि आपको सर्विस को यूज करना है in making an outward taxable supply of the same category, मतलब आपने कोई खाने का सामान खरीदा और उसको खरीदने का पर्पस ये था कि आपको उसको आगे बेचना है, उस सेम प्रोडक्ट, उस गुड्स या उस सर्विसेज को यू हैव टू सेल फर्दर. तो ऐसे केस में एक्सेप्शन है कि आप फूड का क्रेडिट ले सकते हो. दूसरा एक्सेप्शन इसी रिस्पेक्ट में क्या है कि आपने खरीदा तो फूड, बट आप फूड तो नहीं बेच रहे हैं एज इट इज, बट आप जो अपने आउटवर्ड पे सप्लाई दे रहे हैं, फूड उसका एक एलिमेंट है. तो उस केस में भी आपने जो फूड और बेवरेजेस प्रोक्योर किए हैं या आउटडोर केटरिंग की सर्विस प्रोक्योर की है, आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं. We'll move to the next slide and then we'll come back to this. The general interpretation as I was discussing. Next slide, Anshul. As I was saying कि अगर आप सेम आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं जो आपने फूड या बेवरेजेस खरीदे हैं, तो उसका क्रेडिट आप ले सकते हैं. उसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? अ सिंपल ग्रोसरी स्टोर जो इतना सारा फूड आइटम्स खरीदते हैं, एंड वो खरीदते हैं क्योंकि उनको रिटेल में बेचना है सेम कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, नॉट सर्विसेज, सेम कैटेगरी ऑफ गुड्स को, तो वो उन गुड्स का क्रेडिट लेते हैं. उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इवन व्हेन दे आर गुड्स, दे आर फूड और बेवरेजेस. ठीक है, ये एक सिंपल एग्जाम्पल था. द कॉम्प्लिकेटेड और द नेक्स्ट लेवल एग्जाम्पल इज कि एक इवेंट कंपनी है जिसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि आपको एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना है जहां पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, इंक्लूडिंग अरेंजमेंट ऑफ फूड एंड बेवरेजेस एंड providing the space or arranging the space or maybe transportation, everything, the whole organization of an event, जिसमें खाना प्रोवाइड करना एक एलिमेंट है. अगर ऐसा है तो आउटवर्ड एंड पे वो इवेंट कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, विच इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट, उसकी आउटवर्ड सप्लाई का एक एलिमेंट है सप्लाई ऑफ फूड, जो कि उसकी कॉम्पोजिट सप्लाई का पार्ट है. और क्योंकि ऐसा है तो जो फर्स्ट एक्सेप्शन की हमने बात की थी 2 स्लाइड्स बिफोर दिस, आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है फूड और बेवरेजेस के जनरल रूल का. अब हम वापस एक बार 2 स्लाइड्स पहले जाएंगे. जो दूसरा एक्सेप्शन था, फूड और बेवरेजेस का क्रेडिट एक और केस में मिल सकता है, जो कि अगेन अमेंडमेंट एक्ट से एक रिलैक्सेशन आया था कि फूड और बेवरेजेस का क्रेडिट ले सकते हैं अगर वो फूड और बेवरेजेस यूज आ रहे हैं in providing a service or a supply or maybe providing that facility by an employer because he is obliged to provide that facility to its employees under any law for the time being in force. तो इसका क्या मतलब है? इसका कॉमन लैंग्वेज या कॉमन बैलेंस में ये मतलब है कि आपने अपनी फैक्ट्री में एक कैंटीन सेटअप कर रखा है जहां आपके एम्प्लॉइज को फूड प्रोवाइड होता है. उस कैंटीन के लिए आप फूड परचेज करते हैं या आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर रखा है जो वो कैंटीन रन करता है और आपको सप्लाई ऑफ फूड की बिलिंग करता है. आपने वो कैंटीन इसलिए सेटअप कर रखा है अपनी फैक्ट्री में क्योंकि फैक्ट्रीज एक्ट आपको बोलता है कि आपके पास एक स्पेसिफाइड नंबर
से ज्यादा के वर्कर्स हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है कि आप अपनी फैक्ट्री में कैंटीन अवेलेबल करवाएं, इसलिए आपको करवाना जरूरी है और इसीलिए आप करवा रहे हैं। अगर ऐसा है तो आपके ऊपर फैक्ट्रीज एक्ट से एक ऑब्लिगेशन है बीइंग एन एम्प्लॉयर कि आपको फूड की फैसिलिटी अपने एम्प्लॉयज को देनी ही है, और क्योंकि आप इस ऑब्लिगेशन में वो फैसिलिटी दे रहे हैं इसलिए आप फूड और बेवरेजेस का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हियर आई हैव सेट आउट द एग्जांपल। फैक्ट्रीज एक्ट बोलता है कि अगर आपके 250 से ज्यादा के वर्कर्स हैं तो आपको एक कैंटीन सेटअप करना है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये आती है क्योंकि ऑब्लिगेशन है तो आपको क्रेडिट मिलना चाहिए। इस डिस्कशन को मैं थोड़ा सा और आगे लेके जाऊंगी। अगर सिर्फ 17 सबसेक्शन 5 की बात करें और जहां तक वो बोल रहे हैं कि क्रेडिट ब्लॉक्ड है आईटीसी इसमें फूड एंड बेवरेजेस पे, लेकिन आप क्रेडिट ले सकते हैं अगर आप ऑब्लिगेशन में फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हाँ मैं कर रही हूँ ऑब्लिगेशन में प्रोवाइड, सो आई कैन टेक क्रेडिट। लेकिन इस ट्रांजैक्शन पे और भी लॉ के कुछ प्रोविजंस है जिनका इम्पैक्ट है, जहां से क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट फिर से हो जाती है। वो क्या है? अगर आपने you're yourself saying कि आपने वो कैंटीन सेटअप किया है क्योंकि आपको एम्प्लॉयज को फूड प्रोवाइड करना है। जीएसटी लॉ में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेटेड पर्सन होते हैं लॉ के हिसाब से, और जीएसटी लॉ में एक कॉन्सेप्ट होता है डीम्ड सप्लाईज का, कि अगर आप अपने रिलेटेड पर्सन को बिना कंसिडरेशन के भी कोई सप्लाई कर रहे हैं तो उसे डीम्ड सप्लाई माना जाएगा और उस पर टैक्स लगेगा। ये कॉन्सेप्ट है, नोन टू एवरीवन। नाउ द कैच इज कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट से या आपके टर्म्स से ये एस्टेब्लिश हो जाता है कि हाँ ये एक सप्लाई है बाय योर कंपनी और बाय योर एंटिटी टू योर एम्प्लॉइज, तो इस सप्लाई पे टैक्स लगना है। अब टैक्स कैसे लगना है? क्योंकि सप्लाई ऑफ फूड जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग सर्विस है, तो सर्विस की जो रेट नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगना है। सर्विस की रेट नोटिफिकेशन में एक एंट्री है 9963, जहां एक स्पेसिफिक एंट्री है सप्लाई ऑफ फूड, जिसमें कैंटीन एक्सप्लिसिटली कवर किया गया है कि आप फैक्ट्री या किसी भी बिजनेस प्रेमाइसिस की किसी कैंटीन में अगर फूड की सप्लाई करते हैं तो आपको उस पर 5% टैक्स रेट लगाना है। वो 5% टैक्स रेट लगाना मैंडेटरी है, ऐसा भी वो नोटिफिकेशन बोलती है। नोटिफिकेशन के एंड में लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में कि क्योंकि आप इफ यू आर प्रोवाइडिंग दिस सप्लाई ऑफ फूड सर्विस एट द कैंटीन, आप रेजिडुअरी एंट्री में नहीं जा सकते, आपको उस ही एंट्री में जाना है जहां टैक्स रेट 5% है। और जहां टैक्स रेट 5% है वहां एक कंडीशन भी है लॉ में कि अगर आप 5% पे टैक्स दे रहे हैं तो आप अपनी इनवर्ट सप्लाईज का क्रेडिट नहीं ले सकते। ओके, सो ऑल्दो 17(5) मना नहीं कर रहा है, बट वो सर्विसेज की रेट नोटिफिकेशन की वो एंट्री जहां आपकी सप्लाई कवर हो रही है वो मना कर रही है कि आप अपनी किसी भी इनवर्ट सप्लाई का क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। इफ वी गो बाय दैट, उस एंट्री के अकॉर्डिंग आप कैंटीन में जो सप्लाई अपने इंप्लॉइज को कर रहे हैं जिसपे 5% टैक्स रेट लगना चाहिए अगर वो डीम्ड सप्लाई है तो वहां जाके आपका क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अगर आप ये एस्टेब्लिश करते हैं कि जो इंप्लॉय को के लिए आपने कैंटीन एस्टेब्लिश कर रखा है वहां कोई सप्लाई नहीं है, तो फिर कोई सप्लाई नहीं है और कोई टैक्स नहीं है तो उस एंट्री में आप फॉलो ही नहीं करते, तो ये वाला लेग जो मैंने अभी डिस्कस किया ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं होगा। उस केस में आप सिर्फ फूड प्रोक्योर कर रहे हैं और ऑब्लिगेशन में आप कैंटीन में प्रोवाइड कर रहे हैं, उस केस में आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं। So this is the whole scenario between regarding the canteen supplies to your employees. I think we can move ahead. This is kind of basic, does not need much of explanation. Again, जो फूड की एंट्री थी वैसे ही एक एंट्री है कि आप हेल्थ सर्विसेज का क्रेडिट नहीं ले सकते, ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज का क्रेडिट नहीं ले सकते, और किसी भी तरीके की कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी की नेचर की जो सर्विसेज है उनका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट 17(5) के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। सेम एक्सेप्शंस हैं इस केस में कि अगर आप सेम सर्विस अपने आउटवर्ड एंड पे दे रहे हैं या फिर कोई कॉम्पोजिट सप्लाई दे रहे हैं जिसका वो एलिमेंट है तो उसका क्रेडिट आप ले सकते हैं।
अगेन ये हेल्थ सर्विसेज या पर्सनलाइज सर्विसेज अगर कोई एम्प्लॉयर दे रहा है क्योंकि वो किसी लॉ से बाउंड है टू डू सो अपने एम्प्लॉयज को देने के लिए, तो उस ऑब्लिगेशन के अंडर दी गई ये सर्विसेज के लिए जो भी इनवर्ट सप्लाईज आई है हेल्थ सर्विसेज की या ब्यूटी सर्विसेज की, उसका क्रेडिट वो ले सकता है. दिस इज बेसिक. आई डोंट थिंक मच ऑफ इश्यूज आर ऑब्जर्व्ड टिल डेट इन दिस, सो आई गो ऑन द नेक्स्ट वन. आईटीसी ऑन इंश्योरेंस, इसको थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं. दो तरीके की इंश्योरेंस है स्पेसिफिकली जिसका क्रेडिट लॉ में रिस्ट्रिक्टेड है. वो है लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस. दीज आर वेरी जनरल टर्म्स. लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस ऑब्वियसली किसी ह्यूमन बीइंग की लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए करवाया जाता है. इसमें एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है जहां वी गेट क्वेश्चंस वेरी जनरली, which is key man insurance policy which companies do procure for their directors or important personnel. अगर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी आप लेते हैं तो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब ही होता है उन इंपॉर्टेंट लोगों की, डायरेक्टर्स या जो भी आपके की मैन है आपके एंटिटी में, उनके लाइफ के लिए ही वो इंश्योरेंस होता है. सो दिस इज स्क्वेयरली एंड फेयरली कवर्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस. और क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस का क्रेडिट नहीं मिलता है तो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसीज का इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेलेबल नहीं होता है. अगर आप आउटवर्ड में भी इंश्योरेंस की सर्विस दे रहे हैं जो कि एक स्पेसिफिक केस है, ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनीज करेंगी, तो उनके लिए ही बस इंश्योरेंस क्रेडिट, इन दोनों इंश्योरेंस का क्रेडिट मिलता है. अदरवाइज जनरल बिजनेस इंडस्ट्रीज को लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस का क्रेडिट नहीं मिलता. हेल्थ पॉलिसीज फॉर एम्प्लॉइज और फॉर डायरेक्टर और फॉर एनीबडी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा. नेक्स्ट स्लाइड. Keyman insurance I have discussed. There's one more example in this regard. Again, we get questions for this, and I'm discussing for the good of everybody present here. Workmen's compensation insurance policy. Workmen's compensation insurance policy क्या होता है? आपकी बिजनेस प्रेमाइसिस पे या फैक्ट्री प्रेमाइसिस पे जो लोग काम कर रहे हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट और देयर वर्क, अगर उनको कोई भी इंजरी होता है तो उस इंजरी से जो भी लीगल डैमेज कंपनी को बेयर करना चाहिए वो बेयर करने के लिए कंपनी इंश्योरेंस कराती है, विच इज नोन एज वर्कमैन कंपनसेशन. अगर फैक्ट्री में कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है और किसी इंप्लॉय को कोई इंजरी हो जाती है, वेदर इंजरी और डेथ, अगर वो इंजरी के लिए वो कंपनी से कुछ क्लेम करता है तो कंपनी उसे कंपनसेशन देगी. तो इस तरीके की कंपनसेशन प्रोवाइड करने के लिए कंपनीज वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है. करेक्ट. अब ये वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस हमें क्या टेस्ट करना है, इसकी आईटीसी मिलेगी या नहीं, उसके लिए कि ये दो चीजों में कवर होता है या नहीं, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस. लाइफ इंश्योरेंस में तो ये कवर नहीं होता क्योंकि इट्स नॉट ओनली विद रिगार्ड टू वन इवेंट दैट इज डेथ, इट ऑल्सो कवर्स इंजरीज. बट as far as we have understood it or interpreted it, वर्कमैन कंपनसेशन किसी जनरल हेल्थ पॉलिसी की तरह नहीं है. आपकी किसी भी तरीके से तबीयत खराब होती है तो आप जाके वर्कमैन कंपनसेशन का बेनिफिट नहीं ले सकते. इट इज स्पेसिफिकली टू इंजरीज कॉज्ड ड्यूरिंग और ड्यू टू द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो वर्कमैन कंपनसेशन हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होता. इसलिए in our opinion ITC should be available on workman compensation insurance policy. This is more or less which we have came across in health and life insurance. Going forward, ITC on membership. जो एंट्री है जो क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट करता है वो है मेंबरशिप ऑफ अ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर. मेंबरशिप पे आईटीसी नहीं मिलता, जनरल रूल. पर कौन सी मेंबरशिप पे नहीं मिलता वो लॉ में क्लियरली लिखा हुआ है. किसी क्लब की मेंबरशिप पे या हेल्थ और फिटनेस सेंटर. हेल्थ और फिटनेस सेंटर बहुत क्लियर एक कैटेगरी है. क्लब की मेंबरशिप पे नहीं मिलता. बिजनेस में जनरली मेंबरशिप के खर्चे होते हैं और वो बिजनेस क्लब्स के खर्चे होते हैं. यहाँ जो क्लब मेंशन्ड है, एज फार एज वी अंडरस्टैंड, दिस इज क्लब्स which is for some personal engagement of an individual. It is not general business membership.
क्लब्स जहाँ पे किसी भी तरीके की एक्टिविटी हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या अदरवाइज हो, उन तरीके के क्लब्स की मेंबरशिप पे क्रेडिट नहीं है। लेकिन जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की मेंबरशिप है, जो कि एक बहुत जनरल खर्चा होता है इंडस्ट्रीज में, उस पे क्रेडिट, उसके क्रेडिट पे आई डोंट थिंक और वी डोंट हैव एन ओपिनियन की रिस्ट्रिक्शन है। तो बिजनेस ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस की आईटीसी पे मेंबरशिप पे आईटीसी इज अवेलेबल। द ओनली इफेक्टिव मैनेजमेंट एरिया हियर इज कि आप जब भी मेंबरशिप का कोई खर्चा अपनी बुक्स में डाल रहे हैं, इट शुड बी इंश्योर्ड कि आप उस मेंबरशिप का नेचर लिख के रखें। वरना अगर कभी भी टैक्स अथॉरिटीज इंस्पेक्ट करती हैं कि आपकी बुक्स में एक लेजर है मेंबरशिप नाम का, तो क्योंकि 17.5 की लिस्ट बहुत ही छोटी है अपेरेंटली, उसमें जो भी लिमिटेड नाम आ रहे हैं अगर वो आपके एक्सपेंसेस में दिखेंगे तो कहीं ना कहीं इट विल अट्रैक्ट एन आई फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप इजीली उसको जस्टिफाई कैसे कर सकेंगे। वही एक टूल है इफेक्टिव मैनेजमेंट का, जो यहाँ रिक्वायर्ड भी है कि आप जहां भी मेंबरशिप का खर्चा डाल रहे हैं अपने नरेशंस में या अगेन रिपोर्ट के किसी फील्ड में ये लिख के रखें कि ये किस नेचर की मेंबरशिप, क्या ये किसी स्पोर्ट्स क्लब की मेंबरशिप है या किसी हेल्थ क्लब की मेंबरशिप है या किसी बिजनेस क्लब की मेंबरशिप है। वो लिख के रखेंगे तो इट विल बी वेरी इजी टू जस्टिफाई कि क्रेडिट एलिजिबल है या नहीं है। तो दिस इज एन एरिया ऑफ मैनेजमेंट। वी कैन गो अहेड। आईटीसी ऑन ट्रैवल बेनिफिट्स, इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आप अपने एम्प्लॉयज को लीव ट्रैवल या होम ट्रैवल कंसेशन के किसी भी खर्चे के लिए खुद ट्रैवल का कोई खर्चा इनकर करते हैं फॉर हिज एलटीसी और फॉर हिज लीव ट्रैवल बेनिफिट्स, देन आपको उन ट्रैवल बेनिफिट्स पे किए गए खर्चे का क्रेडिट नहीं मिलता है। एक्सेप्शन कि यू बीइंग एन एम्प्लॉयर यू आर ऑब्लाइज्ड कि आपको एम्प्लॉय को वो फैसिलिटी या वो ट्रैवल बेनिफिट्स देने ही है। अगर ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है तो इन ट्रैवल बेनिफिट्स का कंपनी कोई क्रेडिट नहीं ले सकती। इट इज रिस्ट्रिक्टेड अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 general rule. Next, yes, very important, and till date I think the most litigative issue which has already been brought it in litigation, and even decisions have been declared on these two entries, works contract and construction. ये एक स्पेसिफिक एरा ऑफ एक्सपेंस की बात है जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी पे किए गए खर्चों का इनपुट टैक्स क्रेडिट रिस्ट्रिक्टेड है। अब किस तरीके के खर्चों की बात हो रही है? एक एंट्री है जो बोलती है कि आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज का क्रेडिट नहीं ले सकते। कौन सी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज? व्हेन सप्लाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी। इसमें हर शब्द का एक मीनिंग है और इंटरप्रिटेशन है अगर वो शब्द लॉ में डिफाइंड नहीं है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डिफाइंड। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सीजीएसटी एक्ट के डेफिनेशंस में ये टर्म वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्लियरली डिफाइंड है कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मींस अ कॉन्ट्रैक्ट किस चीज के लिए? कंस्ट्रक्शन के लिए, रेनोवेशन के लिए, रिपेयर के लिए, ऑल्टरेशन के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए, एनीथिंग फॉर एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो ये सब काम अगर आप किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे करा रहे हैं जहां पे आपके काम में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स, मतलब आप सर्विस तो दे ही रहे हैं ये सब काम करने की, और उस सर्विस में ही या उस कॉन्ट्रैक्ट का ही एक पार्ट है कि कुछ गुड्स की ओनरशिप भी ट्रांसफर होगी। द क्लियर एग्जाम्पल टू फर्स्ट अंडरस्टैंड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अगर मैंने किसी को बिल्डिंग बनाने का कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया है और मैंने कहा है कि माल भी आपको ही लाना है, लगाना है, और मुझे तो बिल्डिंग चाहिए कंस्ट्रक्टेड, तो उसका काम है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना। पर जब वो हमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके दे रहा है तो सीमेंट, स्टील, एवरीथिंग विच ही इज पुटिंग इन, वो सीमेंट स्टील सब मेरा हो जाएगा वंस द बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड। तो वो गुड्स की प्रॉपर्टी भी या गुड्स की ओनरशिप भी मुझे ट्रांसफर हो रही है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है अगर ये किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ये जीएसटी का एक जनरल कॉन्सेप्ट है। अब बात आती है कि आईटीसी किस पे रिस्ट्रिक्टेड है? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज जो आप प्रोक्योर करते हैं, अगर आपने कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया है तो उसका आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड है। किस लिए लिया है? किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है। कंस्ट्रक्शन क्या होता है? कंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट पेज,
कंस्ट्रक्शन, जिस सेक्शन में ये आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड है वहां कंस्ट्रक्शन के लिए एक बात बोली गई है. मैं ये नहीं बोलूंगी कि कंस्ट्रक्शन को डिफाइन किया गया है, बट बोला गया है कि कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स रिकंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, एडिशन, ऑल्टरेशन और रिपेयर्स टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन टू द सेड इमूवेबल प्रॉपर्टी. जनरल भाषा में बात करते हूँ, लॉ में ये लिखा हुआ है. जहां आपने कोई नई बिल्डिंग बनवाई है वहां तो आपको क्लियरली समझ में आता है कि इट इज कंस्ट्रक्शन. लॉ के एक्सप्लेनेशन में क्या बोला गया है कि अगर किसी बनी हुई बिल्डिंग का आपने रिकंस्ट्रक्शन कराया है, रेनोवेशन कराया है, किसी भी तरीके के रिपेयर्स आपने कराए हैं उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के, और उस रिपेयर को या रेनोवेशन को आपने कैपिटलाइज किया है. कैपिटलाइज मींस आपने ऑब्वियसली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको फिक्स एसेट्स में दिखाया है, तो वो जो खर्चा है वो खर्चा माना जाएगा कि वो कंस्ट्रक्शन के लिए किया गया खर्चा है. फॉर दिस सेक्शन एटलीस्ट, इस सेक्शन के लिए ही समझाया गया कि कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स रिपेयर्स टू द एक्सटेंट वो रिपेयर्स आपके फिक्स एसेट्स का पार्ट है. प्रीवियस स्लाइड. अब क्रेडिट किस पे नहीं मिलेगा? अगर आपने इसी तरीके के या तो नई बिल्डिंग बनवाने के लिए, किसी भी रिपेयर को करवाने के लिए कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली है और वो कंस्ट्रक्शन या रिपेयर मतलब इंक्लूडिंग रिपेयर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है अदर देन प्लांट एंड मशीनरी. इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉट डिफाइंड अंडर लॉ. अंडर दिस लॉ इमूवेबल प्रॉपर्टी की कोई डेफिनेशन नहीं है यहाँ पे, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी को समझने के लिए अर्लियर लॉज का एक बहुत बड़ा सेट ऑफ जजमेंट्स है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे डिसीजंस में ये समझाया है कि हाउ यू हैव टू इंटरप्रेट कि कोई सेड प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी है या मूवेबल प्रॉपर्टी है. मैं जनरल चीजें आपको बता सकती हूँ. इमूवेबल प्रॉपर्टी उसे कहा जाता है जिसको मूव करने का बनाने वाले या बनवाने वाले या रेसिपेंट इन जनरल टर्म्स का कोई इंटेंशन नहीं है, या फिर बिना डिसमेंटल किए वो प्रॉपर्टी इजीली एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं की जा सकती, तो उसे इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं. एज पर सेटल्ड डिसीजंस, इमूवेबल प्रॉपर्टी को के कंस्ट्रक्शन के लिए अगर आपने कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली है तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा. इस इमूवेबल प्रॉपर्टी में से स्पेसिफिकली प्लांट एंड मशीनरी को छोड़ा गया है या बाहर किया गया है कि इमूवेबल तो कुछ भी हो सकता है, एक मशीन भी इमूवेबल हो सकती है, लेकिन क्रेडिट किसके रिस्पेक्ट में नहीं है? इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी. मतलब प्लांट एंड मशीनरी पे अगर आप कोई काम करा रहे हैं जिसको आप कंस्ट्रक्शन बोल रहे हैं और जो सर्विस आप ले रहे हैं वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, तो भी आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं. अब प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है? अगेन नेक्स्ट स्लाइड. जो एक्सप्लेनेशन अभी मैंने डिस्कस किया उसी सेक्शन के एंड में प्लांट एंड मशीनरी को भी समझाया गया है. प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है? किसी भी तरीके का अपैरेटस, इक्विपमेंट या मशीनरी जो कि अर्थ से जुड़ा हुआ है किसी भी फाउंडेशन या सपोर्ट के साथ. मतलब इट इज नॉट मूवेबल कि वो यहां रखा और आप उसको शिफ्ट कर दें. वो जमीन से जुड़ा हुआ है, किसी फाउंडेशन से वो अटैच्ड है, या कोई स्ट्रक्चरल सपोर्ट है जिससे वो अर्थ से जुड़ा हुआ है. और प्लांट एंड मशीनरी में से स्पेसिफिकली कुछ चीजें एक्सक्लूड की गई हैं, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग्स, पाइपलाइंस आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस एंड टेलीकम्युनिकेशन टावर्स. तो ये सब चीजें प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आती हैं. प्रीवियस स्लाइड. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अदर देन प्लांट एंड मशीनरी पे क्रेडिट नहीं मिलेगा. ये रूल हमको समझ गया, हमको हर टर्म का मीनिंग हमने इसमें पढ़ लिया है. अब इसका मैं जनरल इम्प्लीकेशन जो हमने ऑब्जर्व किया है टिल डेट वो डिस्कस कर लेती हूँ. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस का जो एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि आपको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का क्रेडिट एक केस में मिल सकता है व्हेन यू आर सप्लाइंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस एट योर आउटवर्ड एंड दिस इज वेरी जनरल फिनोमेना इन द सेक्टर ऑफ कंस्ट्रक्शन कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के काम सब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. तो अगर ये काम मुझे करना है कि आई हैव टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग एज पर द ऑर्डर गिवन बाय यू टू मी, कि मुझे एक बिल्डिंग बनानी है, आपने मुझे बोला, और मैंने वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट एज इट इज मतलब इंक्लूडिंग सर्विस एंड मटेरियल एलिमेंट किसी और कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, करेक्ट? तो आपके लिए तो मैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हूं, पर मेरे आगे भी एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसको जनरल टर्म्स में सब कॉन्ट्रैक्टर कहा जाता है. तो
मी बीइंग द मेन कॉन्ट्रैक्टर, मेरे लिए ये एक्सेप्शन बहुत काम का है कि मुझे जनरली तो किसी को भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का क्रेडिट नहीं मिलता है। अगर आप आज मुझसे अपनी फैक्ट्री की या ऑफिस की बिल्डिंग बनाने का कोई कॉन्ट्रैक्ट मुझे देते हैं, तो मैं आपको जो बिलिंग करके दूंगी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस की, उसका क्रेडिट आप तो नहीं ले सकते हैं। लेकिन मैं अगर एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हूं, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिया वो काम मैंने किसी थर्ड पर्सन से करा लिया, किसी और कॉन्ट्रैक्टर से करा लिया, और उसने भी मुझे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दी, मैंने आगे आपको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दी। तो जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस मैंने ली बीइंग अ मेन कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि मैं आउटवर्ड पे भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की ही सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, तो मैं इनवर्ड वाली वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का क्रेडिट अवेल कर सकती हूँ। दिस इज एन एक्सेप्शन टू दिस एंट्री विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. In some cases we have given opinions on this also कि आपको ये जरूर ध्यान में रखना है अपने आउटवर्ड पे जब आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि आपके इनवर्ड एंड पे जो भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस है उसके सप्लायर्स आपको सही तरीके से बिलिंग कर रहे हो। यहाँ इफेक्टिव मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि जनरल रूल ये बोलता है कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का क्रेडिट नहीं मिलेगा, बट आप एक एक्सेप्शन में फॉल करते हैं कि आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का क्रेडिट भी ले रहे हैं। वो आप क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आप बोल रहे हैं कि आपका इनवर्ड भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है और आपका आउटवर्ड भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है। इसके लिए आपको दोनों चीजें, आप पे एक बहुत बड़ा ऑब्लिगेशन या आई से रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको दोनों एंड पे ये प्रूव करना पड़ेगा कि इनवर्ड जो आप ले रहे हैं वो भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है और आउटवर्ड पे जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है। ये आप कैसे प्रूव करेंगे? जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, इनमें हर वर्ड का एक मीनिंग है, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी पे काम कर रहे हैं या आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब अगर इन एनी केस यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि आपका आउटवर्ड सप्लाई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, आप कोई प्लांट एंड मशीनरी, लेट्स से आप कोई, you have received an order to make a plant, a big plant which has many large tanks or maybe some things which are somehow movable easily. वो बड़ा है साइज में बट वो मूवेबल है। अगर हम उसको उसका इंग्रेडिएंट समझें और उसका स्ट्रक्चर समझे प्लांट का, तो वी विल अंडरस्टैंड कि वो प्लांट को बिना पूरा डिसमेंटल किए इजिली एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे शिफ्ट किया जा सकता है। तो जैसा मैंने समझाया, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगा, और अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होता है तो चाहे आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहां आप कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं और गुड्स की प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर हो रही है, लेकिन आप क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी पे काम नहीं कर रहे हैं या प्लांट एंड मशीनरी पे काम कर रहे हैं, तो आपका आउटवर्ड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस नहीं है, आपका आउटवर्ड है कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अब यहाँ अगर सिर्फ मैं आपके आउटवर्ड की बात करूं तो एक बहुत छोटा इंप्लीकेशन आएगा कि आपका एचएसएन गलत हो जाएगा, कि आप जो एचएसएन यूज कर रहे हैं अपने वर्क्स, अपने काम के लिए, जो आप समझ रहे थे कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ना होके कंस्ट्रक्शन है, तो आपको बस एचएसएन सही करना है। मे बी उन दोनों काम की जीएसटी रेट भी सेम हो, दोनों केस में आपके काम पे 12% का टैक्स रेट लगता हो, तो आप बोलेंगे कि ठीक है हम एचएसएन ठीक कर देंगे, अब हम इसे कंस्ट्रक्शन सर्विस बोलेंगे। पर इसका बहुत बड़ा इंप्लीकेशन यहाँ आता है कि एज सून एज यू से कि आपका आउटवर्ड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ जो क्रेडिट आप ले रहे थे ये बोल के कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट मैं ले सकता हूँ क्योंकि मैं आउटवर्ड पे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ, उस एक्सेप्शन से आप बाहर आ जाएंगे और आपकी वो सारी क्रेडिट का लॉस हो जाएगा जिसको आप एक्सेप्शन के तहत ले रहे थे। तो आपका वेंडर तो आपको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में बिलिंग कर रहा है, पर आपका आउटवर्ड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं एक्चुअली, तो आपको आपके इनवर्ड की भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की क्रेडिट नहीं मिलेगी। और अगर वंस यू हैव अंडरस्टूड या आपको ये चीज आपको ये चीज एस्टेब्लिश हो गया है कि आपका आउटवर्ड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो आपको ये जरूर इंश्योर करना चाहिए एज अ पार्ट ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कि आपकी इनवर्ड सप्लाई में कोई भी आपको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की बिलिंग नहीं कर रहा हो, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं वही काम आप आगे करा रहे हैं, क्योंकि आपका काम वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये आप एक बार समझ चुके हैं, तो आपको आगे अपने वेंडर्स को भी ये समझाना पड़ेगा आप जो बिलिंग कर रहे हैं वो काम वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो कंस्ट्रक्शन सर्विस है, और क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन है तो आप कंस्ट्रक्शन का एचएसएन यूज कीजिए, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मत कीजिए, अदरवाइज आपके बिल्स पे या आपके सब कॉन्ट्रैक्ट के बिल्स पे आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो पूरा क्रेडिट ब्लॉक हो जाएगा इस एंट्री की वजह से।
तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है इफेक्टिव मैनेजमेंट की, कि आप अगर किसी भी ऐसे सेक्टर में डील करते हैं जहां आपको कंस्ट्रक्शन करना होता है किसी प्लांट का, या किसी भी ऐसी एट साइड कंस्ट्रक्शन जो आपको, जहां एम्बिग्विटी हो सकती है आई से कि वो मूवेबल है या नहीं है, वहां पे जरूर चेक कीजिए कि आपका प्रोजेक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी में फॉल करता है या नहीं, और अगर वो मूवेबल है तो आप ये श्योरली इंश्योर कीजिए आपका वेंडर आपको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की बिलिंग नहीं कर रहा हो, अदरवाइज इट विल बी अ ह्यूज लॉस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट. So this is one aspect. We'll move on to the next one. कंस्ट्रक्शन, जो अभी हमने बात किया वो एक स्पेसिफिक टर्म था या एक स्पेसिफिक एंट्री थी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट. वहां सिर्फ इतना लिखा था कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का क्रेडिट नहीं मिलेगा और एक्सेप्शनली मिल जाएगा अगर आप आउटवर्ड पे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस दे रहे हैं. अब हम दूसरी एंट्री पे आते हैं जो एक वाइडर एंट्री है, जो ये बोलती है, कंस्ट्रक्शन के रिस्पेक्ट में ही है वो एंट्री, जो ये बोलती है कि अगर कोई टैक्सेबल पर्सन किसी भी तरीके के गुड्स या सर्विसेज रिसीव करता है for is very important here, for construction of a movable property. So you being in business entity, you have procured goods or services किस लिए? construction of immovable property के लिए on his own account. तो आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा भले ही वो गुड्स और सर्विसेज आपके कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में काम आ रहे हो. व्हाट डज दिस मीन? आप एक ऑफिस बिल्डिंग बनवा रहे हैं अपने स्टाफ के लिए या अपने अकाउंट्स ऑफिस के लिए या लेट्स से फैक्ट्री के लिए भी फॉर वंस. उस ऑफिस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन कराने के लिए आपने सीमेंट खरीदा और आपने एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया. ठीक है, वो आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस नहीं दे रहा है, ये दोनों सर्विसेज अलग अलग दे रहा है. नाउ आपने कुछ गुड्स लिए हैं और कुछ सर्विसेज लिया है. किस लिए लिया है? एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए. वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन आप करवा रहे हैं ऑन योर ओन अकाउंट. ऑन योर ओन अकाउंट का अगेन इस फ्रेज का लॉ में तो कोई मीनिंग लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ऑन हिज ओन अकाउंट का जनरल मीनिंग या लिटरल मीनिंग ये निकल के आता है कि आप अपने पर्पसेस के लिए. अब जब कोई बिजनेस एंटिटी के लिए ये बोला जा रहा है कि आप ओन अकाउंट पे करा रहे हो, मतलब आप बिजनेस पर्पस के लिए करा रहे हो, तो वो तो क्लियर है. तो ऑन हिज ओन अकाउंट या वो कंपनी या वो एंटिटी ऑन देयर ओन अकाउंट या मतलब अपने खुद के पर्पस के लिए कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन करा रही है, तो उसकी गुड्स और सर्विसेज का क्रेडिट वो नहीं ले सकती. ये लॉ है बेसिक. ओके, अब ये ओन अकाउंट की वजह से, जैसा मैं बोल रही थी कि ये टॉपिक बहुत लिटिगेशन में है, तो हाई कोर्ट्स में लोगों ने इसको चैलेंज किया कि जहां पे हम कोई बिल्डिंग यूज कर रहे हैं या हम कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं जिसको हम यूज कर रहे हैं आउटवर्ड में कोई टैक्सेबल सप्लाई देने के लिए. फॉर एग्जाम्पल आई टॉक अबाउट द रियल केस ओनली. एक होटल जो कि कंस्ट्रक्शन कराता है या कोई भी एक कंपनी जो कंस्ट्रक्शन कराती है एक 3 स्टोरी बिल्डिंग का, उसमें शॉप्स बनाती है अलग अलग और वो शॉप्स को किसी को रेंट पे दे देती है whosoever is interested. तो वो कंपनी ने जाके हाई कोर्ट से ये पूछा कि हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है इस बिल्डिंग का, इसमें जितना भी गुड्स हमने खरीदा या जितनी भी सर्विसेज हमने प्रोक्योर किए, हम उसका क्रेडिट ले सकते हैं. मतलब उन्होंने ये बोला है कि हमारे साथ से हम उनका क्रेडिट ले सकते हैं क्योंकि ये बिल्डिंग वी आर नॉट गेटिंग द कंस्ट्रक्शन डन ऑन आवर ओन अकाउंट, ये हम फर्दर सप्लाई करने के लिए यूज कर रहे हैं जिसपे हम आउटवर्ड पे टैक्स देंगे, तो हमें इनपुट पे क्रेडिट मिलना चाहिए. द केस आई एम टॉकिंग अबाउट इज सफारी रिट्रीट्स. जिस केस में गुजरात हाईकोर्ट, उड़ीसा हाईकोर्ट ने ये बोला कि द कंटेंशन ऑफ द पिटिशनर इज राइट एंड क्योंकि वो बिल्डिंग यूज आने वाली है आउटवर्ड में किसी टैक्सेबल सप्लाई को देने के लिए जहां से गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू जनरेट होगा, इसलिए जो इनवर्ड पे गुड्स और सर्विसेज उस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए खरीदे गए उसका क्रेडिट मिलना चाहिए. ये डिसीजन था. ऑल्दो वो एक हाई कोर्ट का डिसीजन है और सुप्रीम कोर्ट से अभी तक अफर्म नहीं है, लेकिन उससे ये एक व्यू आया है कि जब भी बिल्डिंग को यूज किया जा रहा है आउटवर्ड पे कोई टैक्सेबल सप्लाई देने के लिए, तो उसका क्रेडिट लिया जा सकता है. ये व्यू अभी सिर्फ उस हाईकोर्ट के डिसीजन के बेसिस पे, अगर लॉ की बात करें तो खुद के पर्पसेस के लिए बनाई हुई किसी भी बिल्डिंग का
के लिए खरीदे हुए गुड्स और सर्विसेज का इनपुट टैक्स क्रेडिट यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक, ये एंट्री के हिसाब से। अगेन ये इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन की बात है। अगर आप कोई प्लांट एंड मशीनरी बनवाते हैं जो मूवेबल है, उसका क्रेडिट आप ले सकते हैं। ये एरिया है एक इफेक्टिव मैनेजमेंट का। आपने सीमेंट खरीदा क्योंकि आपको अपनी प्लांट एंड मशीनरी को अर्थ से अफिक्स कराना था और उसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर बनाना था, तो वो स्ट्रक्चर पे किया गया खर्चा आपकी प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट है, बिल्डिंग नहीं है वो, या वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, वो प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट है। और प्लांट एंड मशीनरी का क्रेडिट मिलता है, उस पे किए गए कंस्ट्रक्शन के खर्चे का भी क्रेडिट मिलता है, इसलिए आप वो क्रेडिट ले सकते हैं। अब इसमें इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे होगा, आप तब भी कोई खर्चा कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वो खर्चा किस चीज पे हो रहा है। वो चीज बिल्डिंग है या वो प्लांट एंड मशीनरी है, मतलब वो प्लांट एंड मशीनरी है या फिर अदरवाइज है। अगर वो किसी भी तरीके से प्लांट एंड मशीनरी है या लेट्स से वो प्रॉपर्टी मूवेबल है, आपको ये चीज लीगल टर्म्स में, मतलब सिर्फ कॉमन पार्लेंस में नहीं, आपको लीगल टर्म्स में ये चीज समझनी पड़ेगी कि वो प्रॉपर्टी को क्या माना जाएगा, मूवेबल या इमूवेबल। अगर वो प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाती है एज पर लीगल टर्म्स, देन आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं। आपको उन खर्चों को अलग से रिकॉर्ड करना चाहिए और अपने आईटीसी रजिस्टर का पार्ट बनाना चाहिए। तो ये एक एरिया है जहां क्रेडिट लिया जा सकता है। अगर आपको एक बिल्डिंग का भी कंस्ट्रक्शन आपने कराया है और आपको पता है कि वो बिल्डिंग आपको आउटवर्ड पे टैक्सेबल सप्लाई देने में ही यूज आएगा, देन ऑफ कोर्स क्लियरली, मतलब लॉ से तो वी कैन नॉट से कि आप उसका क्रेडिट ले लीजिए। लेकिन जैसा मैंने बताया, क्योंकि एक हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है, तो ये एक एरिया है सोचने का कि क्या आपके केस में फीजिबल है कि आप ऐसी कोई रूलिंग सीक करें कि आपको उस बिल्डिंग का क्रेडिट मिलना चाहिए। तो ये एक एरिया है। मैनेजमेंट तो नेक्स्ट लेवल हो गया। पहले एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन है कि आपके केस में ऐसी कोई सिचुएशन अराइज होती है क्या। अगर है तो वी शुड एक्सप्लोर कि आपके लिए कॉस्ट बेनिफिट क्या है, कि अगर आप हाई कोर्ट से या मे बी एक एडवांस रूलिंग से ये सीख कर सकें कि उस पर आपको क्रेडिट लेना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। So this is these are the two entries in the area of कंस्ट्रक्शन सेक्टर जहां क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट होता है और बहुत लिटिगेशन इधर होता है। तो आपको अपने इनवर्ड के रिकॉर्ड्स में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड खर्चों के लिए बहुत ही क्लैरिटी से एंट्रीज रिकॉर्ड करनी चाहिए। एंड आपको उनके एचएसएन का जो वेंडर ने अप्लाई किया, अपने मेंशन किया है अपने इनवॉइस पे, उसका खास करके ध्यान रखना चाहिए। इट इज एन एरिया ऑफ मैनेजमेंट हियर। नेक्स्ट, ये कुछ जनरल एंट्रीज हैं ब्लॉक क्रेडिट्स की लिस्ट में कि कॉम्पोजिशन स्कीम में जो टैक्स अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन पे करता है तो वो उसका क्रेडिट नहीं ले सकता। कोई नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जो कि कॉन्सेप्ट है जीएसटी में कि कोई एंटिटी जिसका यहाँ कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है बट लॉ के हिसाब से उसे यहाँ एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा, तो वो ऐसी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन अगर कोई गुड्स इंपोर्ट करता है तो उसका क्रेडिट वो नहीं ले सकता। और आईटीसी ऑन गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ यूज्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन, ये एंट्री ये बोलती है कि आप किसी भी ऐसे खर्चे का जो गुड्स या सर्विसेज आपने उस खर्चे में प्रोक्योर किए हैं, वो गुड्स और सर्विसेज का अगर पर्सनल कंजम्पशन हो रहा है तो आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोप्राइटर है जिसने अपनी बुक्स में खर्चे डाल रखे हैं ट्रैवल के, और उन ट्रैवल के खर्चों में एयर टिकट्स हैं उनके फैमिली मेंबर्स के या उस प्रोप्राइटर के या उनके किसी फैमिली टूर के या किसी ऐसे गुड्स के जो उन्होंने पर्सनल पर्पस के लिए, पर्पस तो आया उनसे, कोई पर्सनल इफेक्ट जो उन्होंने खरीदा है, उन्होंने कोई सनग्लासेस खरीदे हैं, कोई क्लोथ्स खरीदे और उन्होंने उसका बिल अपनी बुक्स में डाल रखा है, तो वो जो खर्चे हैं वो पर्सनल कंजम्पशन के खर्चे हैं, उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी में नहीं मिलता है। तो अगर ऐसे कोई भी खर्चे आपकी किताबों में हैं तो यू इंश्योर कि आप उसका क्रेडिट ना लें। ये एक एरिया ऑफ मैनेजमेंट है। मूविंग फॉरवर्ड, देयर इज वन एंट्री जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वी हैव ऑब्जर्व मोर गिफ्ट्स, ऑल्दो दे आर एवरीवेयर, सो आई विल डिस्कस बोथ द एलिमेंट्स सेपरेटली। एक एंट्री है which reads as ITC is not available in respect of
goods lost, stolen, destroyed, written off or disposed of by way of gift or free samples, it is not eligible for ITC, right? अब इस एंट्री के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो मैं एक एक करके डिस्कस करूंगी. फर्स्ट इज गिफ्ट. तो हम पहले ये बात करते हैं कि गिफ्ट क्या होता है. जनरल पार्लेंस में अगर जैसा जैसा हम फूड के लिए बोलते हैं कि फूड का क्रेडिट नहीं मिलता, हम जनरली बोलते हैं गिफ्ट का क्रेडिट नहीं मिलता जीएसटी में. गिफ्ट क्या होता है, ये गिफ्ट का खर्चा क्या है जिसका क्रेडिट रिस्ट्रिक्टेड है. अगर आपने कोई चीज अपने बिजनेस एंटिटी में परचेज किया है, कोई भी गुड्स, उस पर टैक्स लगा है, चार्ज हुआ है, और वो चीज, वो प्रोडक्ट, वो गुड्स आपने किसी को दे दिए हैं वॉलेंटरली, विदाउट एनी ऑब्लिगेशन, विदाउट एनीथिंग एक्सपेक्टेड इन रिटर्न. आपने गिफ्ट दिया है. गिफ्ट जीएसटी लॉ में डिफाइंड नहीं है, लेकिन गिफ्ट कॉमन पार्लेंस में, और गिफ्ट जैसा कि पहले अर्लियर लॉज जहां जो गिफ्ट से रिलेटेड थे, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिए हैं, वहां सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि गिफ्ट नॉमेनक्लेचर से डिसाइड नहीं होता. आपने कोई भी चीज अगर किसी को दे दी और आपने बोल दिया वो गिफ्ट है, तो वो गिफ्ट नहीं है. गिफ्ट वो होता है जिसके रिटर्न में आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, जो आप बिना किसी ऑब्लिगेशन को देते हैं. आपसे गिफ्ट लेने वाला आपको कभी भी ऑब्लाइज नहीं कर सकता कि मुझे गिफ्ट दो. अगर वो ऐसा है तो वो चीज गिफ्ट नहीं है, ऑब्लिगेशन में दी हुई चीज, और वो आपने वॉलेंटरली की है आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन. उस चीज को ही गिफ्ट बोला जाता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है पहले जजमेंट्स में. नाउ जब जीएसटी में इसकी बात होती है तो बोला जाता है कि गुड्स जो कि गिफ्ट के तरीके से दिए गए हैं उनका क्रेडिट नहीं लेना चाहिए. अब बिजनेस कौन से गिफ्ट देता है, हमें ये समझने की जरूरत है. अगर कोई बिजनेस एंटिटी कुछ गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर दे रही है जहां इट इज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, यहां मैं बात करूंगी एक बिजनेस प्रूडेंस से, क्योंकि कोई भी बिजनेस एंटिटी कोई भी चीज बिना किसी रिटर्न एक्सपेक्टेशन के नहीं देगी जनरली. एटलीस्ट वो जो अगर वो बिना कंसिडरेशन के दे सकती है, दैट इज अनडाउटेड. वो ऐसा हो सकता है कि मैं आई एम नॉट चार्जिंग यू एनीथिंग एंड आई एम गिविंग यू माई गुड्स, और मैं बाहर से या फिर कुछ खरीद के आपको दे रही हूँ, अपने प्रोडक्ट के साथ दे रही हूँ, किसी स्कीम में दे रही हूँ. लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही, क्योंकि आप बिजनेस पर्पस के लिए वो खर्चा कर रहे हैं. तो आपके बैक ऑफ द माइंड ये इंटेंशन है कि इस गिफ्ट को देने से कुछ कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे, तो वहां पे देयर समथिंग एक्सपेक्टेड इन रिटर्न. अगर हम जनरली बात करें तो अगर आप कोई भी गुड्स खरीद रहे हैं और आप मतलब अगेन अगर आप उसे गिफ्ट बोल रहे हैं, तो आपको थोड़ा इंस्पेक्ट करने की जरूरत है कि क्या वो वॉलेंटरीली विदाउट एनीथिंग एक्सपेक्टेड इन रिटर्न एक जनरल गिफ्ट है, या फिर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन रिटर्न बट आप अभी कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं कर रहे. अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और या फिर आप किसी ऑब्लिगेशन में वो चीज दे रहे हैं, तो एरिया ऑफ मैनेजमेंट ये है कि आप ये ध्यान रखें कि आप किसी भी तरीके से बिजनेस डॉक्यूमेंट्स पे उसको गिफ्ट शब्द का इस्तेमाल वहां ना करें, क्योंकि वो गिफ्ट नहीं है लीगल टर्मिनोलॉजी में. और क्योंकि वो गिफ्ट नहीं है तो अननेसेसरीली टैक्स अथॉरिटीज की आईज में उसका क्रेडिट पे लिटिगेशन ड्रॉ ना हो, इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप उसको गिफ्ट नाम ना दें, आप स्कीम्स का नाम दें, या जो भी आपको आपके बिजनेस पार्लेंस में जो वर्ड्स यूज हो सकते हैं वो यूज करें, बट गिफ्ट शब्द का इस्तेमाल ना करें जब तक ऐसा नहीं है कि आप वॉलेंटरीली एक्चुअली कोई गिफ्ट ही दे रहे हैं जहां आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है. अगर देर ऐसा है जैसे आपने लेट्स से किसी एम्प्लॉय को या किसी बिजनेस अक्वेंटेंस को किसी इवेंट में, उनके किसी इवेंट में गिफ्ट दे दिया जहां ऑब्वियसली आप उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं इन रिटर्न, उन चीजों का क्रेडिट आपको श्योरली रिवर्स करना चाहिए. लेकिन अगर आपने एक बिजनेस स्कीम निकाली है कि आपके कस्टमर्स अगर आपसे 2 प्रोडक्ट खरीदते हैं जो कि जिसमें आप डील कर रहे हैं, और आप उनको उसके साथ एक पेन या एक कोई भी आर्टिकल गिफ्ट देंगे, तो आप उसको गिफ्ट बोल रहे हैं अभी बिजनेस कॉमन पार्लेंस में कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए. लेकिन वो लीगल टर्मिनोलॉजी में क्योंकि गिफ्ट नहीं है, तो जैसे आप गिफ्ट लिखेंगे वो टैक्स अथॉरिटीज को पिंच करेगा कि उसका क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए, और आगे आपको लिटिगेशन में ड्रॉ करेगा और आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये गिफ्ट क्यों नहीं है. तो बेटर ऑप्शन इज टू नॉट यूज द वर्ड गिफ्ट until and unless it is actually a gift. Now, free samples.
फ्री सैंपल्स वो होते हैं जहां आप अपने ही प्रोडक्ट का एक स्पेसिमेन किसी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को या किसी और एक्वेंटेंस को देते हैं, जिससे वो आपके प्रोडक्ट से यूज टू हो सके या उस पर रिव्यू कर सके या उसे यूज करके और फिर से परचेज कर सके। फ्री, क्योंकि आप फ्री सैंपल्स वर्ड यूज है, मतलब आप उस सैंपल के लिए कुछ चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो आईटीसी कब नहीं मिलेगा? जब आप कोई प्रोडक्ट एज फ्री सैंपल दे रहे हो, कोई गुड्स एज फ्री सैंपल दे रहे हो, आप उसके लिए 1 रुपया भी चार्ज नहीं कर रहे हो, तो वो फ्री सैंपल है। अगर उस गुड्स के रिस्पेक्ट में कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट है आपके पास, तो आपको उसको रिवर्स करना है। यहाँ पे एक एरिया ऑफ डिस्कशन है, पहले वो ये है कि लॉ में ऐसा लिखा हुआ है आईटीसी नहीं मिलेगा उन गुड्स के रिस्पेक्ट में, सिर्फ गुड्स के रिस्पेक्ट में बोला गया है जिनको आपने फ्री सैंपल्स की तरह बांटा है। तो हमारा अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर कोई गुड्स हैं जो आपने खरीदे हैं और आप उनको फ्री सैंपल्स की तरह बेच रहे हैं, तो उन गुड्स का आईटीसी आपको रिवर्स करना है, जो कि ट्रेडिंग सेक्टर में होगा मेनली। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं और आप रॉ मटेरियल गिफ्ट की तरह या फ्री सैंपल की तरह नहीं दे देते, आप उस रॉ मटेरियल पे अपना पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हैं, आपका एक फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है जिसको आप फ्री सैंपल की तरह देते हैं। तो आपने जो क्रेडिट लिए आपने वो उन गुड्स पे नहीं लिए जिनको आप फ्री सैंपल की तरह डिस्पोज कर रहे हैं, और क्योंकि आपने उस पर कोई क्रेडिट ली ही नहीं है, तो हमारे हिसाब से आपको कोई क्रेडिट रिवर्स करने की जरूरत नहीं है जहां तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात है। ऑल्दो ट्रेडिंग सेक्टर में अगर कोई गुड्स परचेज हो रहे हैं और फ्री सैंपल्स की तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो वहां श्योरली क्रेडिट रिवर्सल की जरूरत है। इस एंट्री का एक और पार्ट है गुड्स लॉस्ट, स्टोलन और डिस्ट्रॉयड और रिटन ऑफ। यहाँ जरूरत है थोड़ी कॉशियसनेस की, जो जनरली इट इज ऑब्जर्व दैट इट इज मिस्ड, कि गुड्स का डिस्ट्रक्शन या गुड्स को राइट ऑफ कर देना, गुड्स का डिस्ट्रक्शन या थेफ्ट किसी भी रीजन से हो सकता है। गुड्स डैमेज हो गई क्योंकि फैक्ट्री में आग लग गई, या फिर फ्लड आ गया, या कोई भी नेचुरल डिजास्टर या ह्यूमन डिजास्टर हो गया और आपके कुछ गुड्स का लॉस हो गया। अब वो लॉस 2 तरीके से पता चल सकता है टैक्स अथॉरिटीज को, और मैं तो व्हील से आपको भी, कि एक तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो गुड्स के अगेंस्ट आपने कोई इंश्योरेंस क्लेम लिया होगा, क्योंकि आप कोई डिजास्टर से आपने एक लॉस सफर किया है, या आपने उन गुड्स को राइट ऑफ किया होगा टू बुक द लॉस इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दोनों ही केसेस में जहां आइडेंटिफिएबल है आपकी किताबों से कि आपके कुछ गुड्स का डिस्ट्रक्शन हुआ है या कुछ गुड्स लॉस्ट हुए हैं, तो उन गुड्स के लिए आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना है। सैंपल वाला लॉजिक अगेन यहाँ बैठता है कि जो गुड्स लॉस्ट हुए हैं वो एज इट इज उन पे कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट था, तो उन गुड्स का आईटीसी आपको रिवर्स करना है। ऐसा नहीं है कि आपने उन गुड्स, मतलब आपके रॉ मटेरियल को खरीदा फिर उससे फिनिश प्रोडक्ट बनाया, तो आपको सर्विसेज का आईटीसी भी रिवर्स करना है। सिर्फ गुड्स के रिस्पेक्ट में जितना इनपुट है वो आपको रिवर्स करना है। अगर वो गुड्स डैमेज हो, डिस्ट्रक्ट हो गए हैं किसी फायर या डिजास्टर से, या वो चोरी हो गए हैं या वो खो गए हैं, तो आप उसका आईटीसी अपनी किताबों में अभी भी लेके नहीं चल सकते, या आप उसको अपने आउटपुट से सेट ऑफ नहीं कर सकते, बिकॉज गुड्स आपके यहाँ से चले गए हैं बाय थेफ्ट और डिस्ट्रक्शन और जो भी यहाँ पे मोड्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे एक एरिया ऑफ मैनेजमेंट सैंपल्स के केस में स्पेसिफिकली है, गिफ्ट की मैं बात कर चुकी हूँ। नेक्स्ट स्लाइड, कि जो सैंपल्स आप विदाउट कंसिडरेशन देते हैं वो एक और जगह इम्प्लीकेशन रखते हैं जीएसटी लॉ में। जैसा मैं पहले बात कर रही थी कि कुछ सप्लाईज बिना कंसिडरेशन के भी टैक्सेबल सप्लाईज मानी जाती हैं जीएसटी में। उसी शेड्यूल में एक एंट्री है कि अगर आप अपना कोई भी बिजनेस एसेट बिना कंसिडरेशन के परमानेंटली डिस्पोज कर देते हैं, तो आपको उस पर टैक्स लगाना है, वो एक आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई है आपकी। तो उसके लिए अगर कोई कंसिडरेशन नहीं भी आपने लिया है, तो भी लॉ के जनरल रूल्स जो कि ओपन मार्केट वैल्यू और सब रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको सैंपल्स को एक वैल्यू देनी पड़ेगी और आपको उस पर टैक्स लगाना पड़ेगा। तो उस लॉ को अगर ध्यान में रखा जाए तो फ्री सैंपल करके कोई भी चीज आपको नहीं रिकॉर्ड करनी चाहिए बुक्स में। जीएसटी में अगर मैं बोलूं आपको मैनेज करना है या अननेसेसरी टैक्स लिटिगेशन से बचना है, तो आप अपने सैंपल्स को एक ओपन मार्केट वैल्यू पे हमेशा इनवॉइस कीजिए और वो इनवॉइस पे आप टैक्स पे कीजिए।
अगर एक्सपोर्ट है तो ऑब्वियसली आप दोनों मोड से कर सकते हैं, अंडर LUT और with payment of tax. Both ways are available to you. These are the areas of management in regard to gifts or free samples. Next, the last one, ITC of tax paid in proceedings by tax authorities. इसका मैं जनरल बात करूंगी, although ये पहले इतना अभी तक जो जितना GST लॉ हैज केम फॉरवर्ड इतना काम नहीं आया है, बट ये गोइंग फॉरवर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी टैक्स जो आपने पे किया है इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 74, सेक्शन 129 और 130 सेक्शन का मैं आपको मीनिंग समझा देती हूँ। कोई भी टैक्स अगर आपने पे किया है, क्योंकि टैक्स अथॉरिटीज ने आपको बोला है वो टैक्स पे कीजिए, और बोलते वक्त आप पे फ्रॉड या सप्रेशन का एलिगेशन लगा है, मतलब कोई टैक्स अथॉरिटीज आई, उन्होंने आपकी ऑडिट की और ये बोला कि आपने टैक्स की चोरी की है फ्रॉड के इंटेंशन से, या आपने टैक्स कम पे कराया है या पे नहीं कराया है और आप अब पे कराइए, और जो टैक्स आप पे करा रहे हैं उस पे इंटरेस्ट पेनल्टी जो भी सेक्शन 74 में एप्लीकेबल है वो पे कराइए, तो आप वो टैक्स तो पे करा देंगे। अगर वो टैक्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए था लॉ में अदरवाइज, तो भी क्योंकि वो फ्रॉड के एलिगेशन से टैक्स अथॉरिटीज ने आपसे टैक्स पे कराया है, तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप नहीं ले पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट लेक्चर में अंशुल ने आपको समझाया था कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कुछ सप्लाईज पे आपको टैक्स देना होता है। लेट्स से आप यू मिस टू पे टैक्स ऑन सम इनवर्ट सप्लाईज। अगर आपने इनवर्ट सप्लाईज पे जो कि रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है, आपने टैक्स पे नहीं किया क्योंकि आपको नहीं पता था टैक्स पे होना है, टैक्स अथॉरिटीज ने आपकी ऑडिट की और उन्होंने ये बोला कि आपके ये कुछ फॉरेन पेमेंट्स हैं जिन पे आपको टैक्स पे करना था, अब आप जो कि जिन पे ITC मिलता है जनरली, अगर आप पहले पे कर देते तो आप आराम से पे करके क्रेडिट ले सकते थे, लेकिन अब क्योंकि आपने पे नहीं करा तो हम बोलेंगे कि आपका फ्रॉड का इंटेंशन था, इसलिए एक तो आप पहले ये टैक्स पे कीजिए और आप इस टैक्स का क्रेडिट भी नहीं ले सकते क्योंकि फ्रॉड के एलिगेशन में आप ये टैक्स पे कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां पे भी ये एलिगेशन पिक्चर में आ जाएगा, वहां कितना भी टैक्स आप पे करेंगे उसका आप क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। वैसे ही उसी तरीके से दो और सेक्शंस हैं, ये बेसिकली ईवे बिल के रिगार्डिंग है कि अगर कहीं भी ईवे बिल के पूरे प्रोसीजर में या मैकेनिज्म में ये पाया जाता है कि आपने वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है और आपके गुड्स डिटेन होते हैं और ऑफिसर आपको टैक्स पे करने को बोलता है, तो उस टैक्स का क्रेडिट आप नहीं ले सकते। तो ये 2-3 एरियाज हैं जहां पे अगर ये चीजें बाद में आइडेंटिफाई होती हैं तो इनका टैक्स का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। आई एम डन ऑन माई एंड। नाउ वी आर ओपन टू क्वेरीज, और मे बी Muditsa, if you have any point to add, you can add. Shuchi, have you added that point that credit of goods can be taken in case of repair of motor vehicle? Yes, I've considered that in motor vehicles. Okay. You are talking about motor vehicles, right? I will, yeah, I will add one point, though you have covered decently everything. If in case आप लोगों को confusion है कि आपको किसी चीज का क्रेडिट लेना है या नहीं लेना है, so first thing is always consult। आप पूछ सकते हैं कि आपको क्रेडिट, और फिर भी अगर कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इशू है, so what best practice you can follow is you should take that credit and reverse it. ओके, ये मैं चीज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि क्रेडिट लेने का अपने आप में एक लिमिटेशन है। आप 1 साल तक ही क्रेडिट ले सकते हैं, आप 1 साल के बाद उस इनवॉइस के उसकी क्रेडिट नहीं ले सकते। तो अगर आप एक बार क्रेडिट लेके उसको रिवर्स कर देंगे, सो एक चांस है आपके पास में कि अगर मान लो लॉ का पोजीशन क्लियर होता है या फिर आपका माइंडसेट क्लियर होता है या फिर आपने जो ओपिनियन लिया है वो क्लियर होता है, किसी भी कारण से अगर आप इस चीज पे क्लियर हो जाते हो कि आपको इस चीज का क्रेडिट लेना है, सो यू कैन टेक रिक्रेडिट ऑफ दैट। और अगर आपको ये चीज रहती है कि अब इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, लॉ का पोजीशन ऐसा आता है कि अगेंस्ट में कोई रूलिंग आता है या कुछ और होता है कि आपको इस क्रेडिट का क्रेडिट नहीं लेना है, तो भी कोई इशू नहीं है, आपने उसका क्रेडिट लेके आपने रिवर्स कर दिया है तो भी आपको कोई इशू नहीं आएगा। सो टू सेफगार्ड योर क्रेडिट यू कैन प्लान कि आप एक बार क्रेडिट ले रहे हैं और फिर उसको रिवर्स कर रहे हैं, सो दैट आपका कोई क्रेडिट लैप्स होने का चांस नहीं रहेगा कभी भी। एंड वी आर ओपन फॉर क्वेश्चंस, you can post your questions on chat box.
Any questions? I guess there are no more questions. आपने ज़्यादातर चीज cover कर लिया है through examples. Yes. I guess we should sign off. We can call off. Okay. Okay. Thank you, everybody. Thank you everyone for joining us. This is Mudhajjan signing off. Thank you.